Hello guys, I think that you will have seen the previous videos in which the clear conception was given on function, type of function, composition function and invertible function. Now I am standing before you today to solve some problems related to function. Let us take some questions from function. Here first question is find the domain and range of a real function fx is equal to 4 minus x square. This is given function and you have to find the value of domain and range of this function. Here is the solution. This function is defined. This function will be defined if 4 minus x square will be greater than 0. If this number will be negative, then you know that this function, the value of the function will be imaginary. Therefore, fx will be real if 4 minus x square will be greater than 0 or equal to 0. That is written here. fx is defined if x is a real number. Here, the x should be real and whole value of this 4 minus x square, this should be greater than 0 or it should be equal to 0. Here is the condition. fx is defined if x belongs to R and 4 minus x square is greater than or equal to 0. Now, using this inequality, you have to find the value of x. Because in previous class, you have studied that if fx is equal to 4 minus x square, then x is called domain of the function and value of fx is called range. Here I have to find domain. First we have to find here domain. Therefore, using this inequality and this condition, we will try to find out the value of x. Let us find x. So 4 minus x square is greater than 0. It means x square minus 4 will be less than 0. If minus is taken common and both sides we multiply by minus sign, then x square minus 4 is less than or equal to 0. Now, if we factorize it, then we get x plus 4 and x minus 4 is less than or equal to 0. Now, we have to find the value of x. Then, this number line will help you. Suppose x plus 4, x minus 4 is less than or equal to 0. This is converted into its corresponding equation. Then there will be x plus 4 into x minus 4 is equal to 0. If there will be not in equation, it is converted into its corresponding equation, then what value is obtained? X is equal to 4 and minus 4. Two values are obtained, 4 and minus 4. Therefore, let us take a number line and represent these two numbers, minus 4 and 4. Minus 4 and 4 we have represented. Now, for which value this inequality is true? अब हम लोग ये देखेंगे कि for which value this inequality is true. If we take any number less than minus 4, that is left side of minus 4, there are several numbers. Let us take any one of them. Let us take minus 5. If we put here minus 5, then minus 5 plus 4, what will be there? Minus 5 plus 4, minus 1 into, there is into sign, and there if we write minus 5, minus 4, then we get minus 9. If we multiply minus 1 into minus 9, then we get 9. Then 9 is less than 0. Is it true? No, that is wrong. 9 minus 9 is not less than 0. Therefore, this portion will not be the value of x. Because if we take any value less than minus 4, then this value does not satisfy this in equation. Therefore, this will not be the value of x. Let us take some numbers between minus 4 and 4. Take one number, any one number. Let us take 1. इसके बीच में कोई एक नंबर 1 है, 1 को सिलेक्ट करते हैं. If 1 is put here, then 1 plus 4, 5 into 1 minus 4, minus 3. रिजल्ट आता है 5 into 1 is taken, then minus 3. Then its product will be minus 15. Minus 15 is there. Now here minus 15 is less than 0. ये सही होता है. That is, if we take any number between minus 4 and 4, then this inequality is true for that value.
Therefore we can say that value of x will be may be greater than -4 or less than 4. Therefore this may be the value of x. Now let us take some numbers right side of 4, that is 5, 6, 7, 8, etc. Any one of them. Let us take 5. If we put here 5, then 5 plus 4 9, and 5 minus 4 1. The 9 into 1, there will be 9. The 9 is less than 0. That is wrong. It means this value does not satisfy. All the numbers which is right side of this 4, if that number is taken, then this inequality is not satisfying. Therefore all the numbers right side of the 4 will not be the value of x. Now what is your opinion, that -4 will be the value of x or not? This can be obtained by putting the value of x is equal to -4 in this equation. If we put here -4, the -4 plus 4 0. It may be anything. Then 0 into something is equal to 0. Then there is equal sign also. Therefore -4 will also be the value of x. Similarly 4 will satisfy the inequality or equality. Therefore either it should satisfy inequality or equality. इन दोनों में से किसी को सेटिस्फाई करता है तो वो वैल्यू हो सकता है. तो -4 may be the value of x, 4 may be the value of x, and all the numbers between -4 and 4 will be the value of x. Therefore here it is written that x belongs to -4 to 4 in closed interval. Closed interval means -4 is also included, 4 is also included, and all real numbers between -4 and 4 will be the value of x. Therefore domain is equal to -4 to 4 along with -4 and 4. तो इस तरीके से हम लोग डोमेन निकाल लिए. यानी डोमेन निकालने का मतलब x का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है. नाउ वी हैव टू फाइंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन. इस फंक्शन का रेंज निकालना है. तो व्हेनेवर we want to find the value of range, the range of the function, then suppose fx is equal to y. fx is equal to y. फर्स्ट प्रोसेस में हम लोग यही करेंगे कि fx को y मान देंगे. नाउ fx is given 4 minus x square. Therefore write here 4 minus x square. Now we will try to find out the value of x in term of y. तो x का वैल्यू y के टर्म में निकालना है. तो स्क्वायर को उधर लेंगे y स्क्वायर. x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 minus y स्क्वायर. सिमिलरली x इज इक्वल टू √4 minus y स्क्वायर. अब यहाँ देखिए रेंज आपको निकालना है. रेंज का मतलब इमेज क्या क्या हो सकता है. तो fx को इमेज करते हैं और इमेज को हम क्या मान लिए, fx को क्या सपोज कर लिए हैं, y सपोज कर लिए हैं. इसका मतलब हमें y का वैल्यू निकालना है. हमें ये देखना है कि y का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है. तो देखिए यहाँ x का वैल्यू y के टर्म में निकाल लिए, यहाँ शो कर दिए. अब हमें सोचना है कि y का क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकता है. इसके लिए आप यहाँ थिंकिंग करें कि ये जो नंबर है स्क्वायर रूट के अंदर में, दिस नंबर कैन नॉट बी लेस देन 0. ये 0 से लेस नहीं हो सकता. 4 minus y square कैन नॉट बी लेस देन और इक्वल टू लेस देन 0. That is it may be either 0 or greater than 0. That is written here. Now x is defined. This number x will be defined because x is real number. So x will be defined if 4 minus y square is greater than or equal to 0. इसके अंदर का जो नंबर है या तो वह 0 रहेगा या 0 से ग्रेटर रहेगा, तभी यह x से डिफाइन होगा. और हमें करना क्या है, y का वैल्यू फाइंड करना है कि y का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है. तो चलिए इसके बारे में सोचते हैं. ठीक उसी तरीके से y स्क्वायर माइनस 4 विल बी लेस देन 0. इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये ब्रैकेट आएगा और आपको सोचना है कि y का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है. तो उसी तरीके से इसका कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाएंगे. इस कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन को सॉल्व करने पर क्या होगा, 4 and -4 आएगा. नंबर लाइन जैसे 4 और -4 किए हैं. फिर उसके बाद देखेंगे कि इन 3 पार्ट में ये नंबर लाइन बट गया. 3 पार्ट में से कौन कौन वैल्यूज को सेटिस्फाई करेगा. तो ठीक वही सिचुएशन यहाँ x के रूप में है या y के रूप में है. Therefore we have obtained here that y is equal to -4 to 4. y जो भी नंबर होगा वो -4 से 4 के बीच का होगा या -4 होगा या 4 होगा. Therefore y belongs to this closed interval. Therefore range of function f is equal to -4 and 4. इस तरीके से हम लोग डोमेन और रेंज निकालते हैं.
नहीं, हमेशा ये दिमाग में रखे कि डोमेन निकालना है, इसका मतलब फंक्शन अगर एक्स के फॉर्म में है देन यू हैव टू थिंक अबाउट एक्स, दैट व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। रेंज निकालना है तो एफ एक्स को वाई सपोज कर लें और आप ये सोचें कि वाई का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, तो वाई का जो जो वैल्यू पॉसिबल हो सकता है वही क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। अब चलिए इसी से रिलेटेड एक और हम लोग क्वेश्चन देखें, रेंज और फंक्शंस, ये रेंज और डोमेन से रिलेटेड। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रियल फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए तो इसके लिए भी हम लोग वही करें, प्रोसेस बिल्कुल यही रहेगा और इसमें हमें ये देखना है कि डोमेन क्या है और रेंज क्या है। तो डोमेन निकालने के लिए कंडीशन क्या होगा, पहले ये देखिए, ये एफ एक्स डिफाइन तभी होगा जब ये पूरा का पूरा नंबर क्या हो, पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो, कुछ भी हो सकता है। अब उसके बाद एक कंडीशन पर ध्यान देना होगा कि ये जो नंबर है ये भी नीचे डिनोमिनेटर में, ये अगर जीरो हो जाएगा तब एफ एक्स डिफाइन नहीं हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो का मतलब हो गया कि डेट विल बी नॉट डिफाइन। तो एक ही कंडीशन है कि एफ एक्स विल बी डिफाइन इफ डेट विल नॉट बी जीरो, यह जीरो नहीं होना चाहिए। तो इस कंडीशन को लिखते हैं हाँ कि ये कभी जीरो हो सकता है क्या, कुछ भी नंबर रखेंगे तो यार देखिए तो ये कभी जीरो हो ही नहीं सकते, क्योंकि एक्स अगर नेगेटिव नंबर है या पॉजिटिव नंबर है या इमेजिनरी नंबर है तो स्क्वायर होने के कारण ये जब भी होगा तो पॉजिटिव नंबर ही होगा, जीरो नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि एक्स के जगह पर कुछ भी नंबर, कोई भी नंबर रख दिया जाए तो ये हमेशा क्या होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, नॉट डिफाइन का सिचुएशन नहीं रहेगा। Therefore we can say that f(x) is defined for any real value of x, किसी भी रियल वैल्यू x के लिए होगा। तो अब यहाँ लिखेंगे f(x) defined if x belongs to R, तो therefore domain of f is equal to R। इसमें आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपको केवल ये सोचना है डोमेन में कि x का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है। तो इस एक्सप्रेशन को देखने से ये लग गया कि x का वैल्यू कुछ भी पॉसिबल है, कोई भी रियल नंबर रख देंगे तो ये एफ एक्स नॉट डिफाइन नहीं होगा। देयरफॉर डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू R। अब चलिए इसमें रेंज हमको फाइंड करना है, तो रेंज के लिए अभी आपको प्रोसेस बताया है कि सबसे पहले एफ एक्स को y से पूछना है। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू y, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू y। देयरफॉर अब यहाँ पे एफ एक्स की जगह को y रखेंगे, देन y इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद क्या करते हैं, y इज इक्वल टू, जब उसको एफ एक्स को y से पोस्ट कर देते, अब हमें ये प्रयास करना है कि x का वैल्यू y के टर्म में निकालें। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, क्रॉस करते हैं इसको, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई। हमें वैल्यू निकालना है x का y के टर्म में। चलिए एक्स स्क्वायर वाले को इधर लाते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई। लेट अस फाइंड x, तो एक्स स्क्वायर इसमें से कॉमन लेंगे, देन एक्स स्क्वायर इज कॉमन, देन 1 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई। अब यहाँ से x का वैल्यू अगर निकालेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट वाई बाई 1 माइनस वाई। अब देखिए आपको क्या निकालना है, रेंज। तो रेंज के लिए आप क्या सोचेंगे कि व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y, y का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है। आप एफ एक्स यानी इमेज को ही y माने और इमेज के बारे में आपको सोचना है। देखिए इमेज कैसे निकालेंगे, इसमें y का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो यहाँ जरा आप सोचिए कि इस x को डिफाइन होने के लिए जरूरी है कि रूट के अंदर जो नंबर है y बाई 1 माइनस वाई, ये होल नंबर जो है पूरा का पूरा फ्रैक्शन जीरो होना चाहिए या जीरो से ग्रेटर होना चाहिए। वही बात आप यहाँ लिखेंगे, x इज डिफाइंड इफ y बाई 1 माइनस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। या तो ये पूरा जीरो हो जाएगा तो भी x का वैल्यू जीरो होगा तो पॉसिबल है, या ये पूरा का पूरा जीरो से ग्रेटर यानी पॉजिटिव हो जाएगा तो भी x विल बी डिफाइंड। तो अब यहाँ से आपको सोचना है कि y का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ जरा थिंक कीजिए, 1 माइनस वाई शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, ये कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। और दूसरा एक कंडीशन यहाँ ये है कि ये जो है वह पूरा जीरो से बड़ा होना चाहिए।
तो x इज डिफाइंड, केवल यही कंडीशन से नहीं होगा, इसके साथ एक और कंडीशन जोड़ना पड़ेगा। एंड साथ में ये जो डिनोमिनेटर है 1 माइनस वाई शुड बी ग्रेटर देन, शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मे नॉट बी इक्वल टू 0, ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो दो कंडीशन मिला, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब इन दोनों कंडीशन को देखते हुए आपको थिंकिंग करना है कि y का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है। तो ये चीज़ आप नंबर लाइन से फिर कर सकते हैं। चलिए नंबर लाइन यहाँ देखते हैं। अब इसमें हम नंबर लाइन में 2 नंबर कौन सा रखें, तो यहाँ से देखिए अगर इसका कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन, ये तो इक्वेशन है नहीं, नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन फिर भी अगर ये इक्वेशन होता तो y का वैल्यू क्या आता, 1 आता, तो एक 1 इस पर रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ से अगर y का वैल्यू कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन अगर निकाले तो y का वैल्यू 0 हो सकता है, तो एक नंबर 0 मिला। तो नंबर लाइन पर 2 नंबर हम लेते हैं, एक 0 और एक 1। पूरा का पूरा नंबर लाइन 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब ये पार्ट आपको डिसाइड, इस पार्ट से आप डिसाइड कर सकते हैं कि y का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है। केवल ध्यान रखना है ये दोनों, ये इनइक्वालिटी और ये जो है y 1 माइनस वाई शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। 0 के लेफ्ट साइड में कोई भी नंबर ले लीजिए। चलिए मान लेते हैं 1 माइनस 1 यहाँ रख करके देखिए, अगर y की जगह पर आप -1 रखते हैं तो -1 और नीचे अगर यहाँ रखेंगे तो 1 + 1 दैट इज 2, पूरा का वैल्यू हो जाएगा -1/2। देखिए तो ये पूरा -1/2 हो जाएगा। तो क्या -1/2 इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है, गलत हो जा रहा है। इसका मतलब कि इसके इधर अगर कोई नंबर लेते हैं इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो देयरफॉर दिस विल नॉट बी द वैल्यू ऑफ y। 0 के लेफ्ट साइड का जो भी नंबर है y का वैल्यू नहीं हो सकता क्योंकि इसको सेटिस्फाई नहीं करता है। एक कंडीशन यहाँ है कि y शुड नॉट, 1 माइनस वाई शुड नॉट बी इक्वल टू 0, इसका मतलब हुआ y 0 नहीं हो सकता। अगर इसको उधर ले जाएं तो 1 इज नॉट इक्वल टू y, यानी y 1 नहीं हो सकता। तो पहले से तो क्लियर है कि 1 नहीं होगा y का वैल्यू। 0 के बारे में देखिए, 0 के बारे में क्या आइडिया है। 0 को अगर देखें तो 0 क्या यह पॉसिबल है, यहाँ अगर रखते हैं तो 0 क्या हो सकता है, बिल्कुल। अगर यहाँ 0 रखे, यहाँ 0 रखे तो रिजल्ट 0 आएगा। तो 0 इज इक्वल टू 0, या तो ग्रेटर होना चाहिए नहीं तो इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये वैल्यू हो सकता है। तो जो वैल्यू हो सकता है उसको डॉट से दिखा देते हैं, बुलेट दे करके इसको दिखा देते हैं। फिर उसके बाद इसके बीच का नंबर देखिए, 0 और 1 के बीच में कोई एक नंबर सपोज कर लीजिए, मान लीजिए इसके बीच नंबर 0.5 है। 0.5 अगर यहाँ रखते हैं तो देखिए क्या सिचुएशन होता है। y की जगह पर 0.5 बाई यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 0.5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 आ जाता है। तो देखिए ये पूरा 1 आया इसका वैल्यू। तो क्या 1 0 से बड़ा है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब इसके बीच का जो ये वैल्यू है ये टोटल उसका वैल्यू हो जाएगा। इसको थिक लाइन से नहीं, मोटा थोड़ा सा कर दे इसको, ताकि पता चले कि दीज आर द वैल्यूज ऑफ y। और 1 के बारे में क्या किया है, यहाँ से देखिए 1 यहाँ कह रहा है कि अगर y की जगह पर 1 रख देंगे तो 0 के इक्वल आ जाएगा, लेकिन y का वैल्यू ऐसा होना चाहिए कि ये पूरा का पूरा वैल्यू 0 ना आए। इसका मतलब ये 1 नहीं हो सकता। तो 1 अगर नहीं होता है तो उसके लिए सिंबल है कि आप उसको इंसर्किल कर दीजिए, इससे पता चलेगा कि 1 वैल्यू नहीं है। एक पोर्शन और बच गया 1 के राइट साइड में। तो 1 के राइट साइड में कोई एक नंबर लीजिए, सपोज 2 अगर यहाँ रख करके देखिए क्या होता है। अगर यहाँ 2 रखते हैं तो 2 अब बाई 1 माइनस 2 क्या रिजल्ट होगा, -2 आ जा रहा है। तो क्या -2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, -2 इसका वैल्यू आता है। तो -2 इज ग्रेटर देन 0, दैट विल बी रॉन्ग, इट मीन्स दैट विल नॉट द वैल्यू। ये वैल्यू नहीं होगा, ये वैल्यू नहीं होगा, 1 वैल्यू नहीं होगा, इसके बीच का वैल्यू होगा। इससे क्लियर हो गया कि यहाँ जो दोनों कंडीशन है, इन कंडीशन के आधार पे हम लोग क्या लिखें। अब लिख सकते हैं कि y बिलोंग्स टू, किसे बिलोंग करता है, तो इसके बीच का जो नंबर उसे बिलोंग करता है। तो आप इसको इंटरवल में लिख दें, क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 और 1 को ओपन कर दें, क्योंकि 1 इसमें शामिल नहीं है। तो y का वैल्यू ये सब हो सकता है। इट मीन्स रेंज इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 0 to 1। तो स्टूडेंट ये तो हुआ डोमेन ऑफ रेंज निकालने से संबंधित क्वेश्चन। बोर्ड में कुछ और क्वेश्चन आते हैं टाइप ऑफ फंक्शन से। जैसे आपने पढ़ा था कि फंक्शन के 4 टाइप्स होते हैं, 1 1 और 2
फिर उसके बाद मेनी वन इनटू, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखें। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं प्रूफ से रिलेटेड, जिसमें आपको प्रूव करना है कि गिवन फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। एक क्वेश्चन को यहाँ हम लोग लिखें। सपोज f be a function from R to R such that fx is equal to 2x minus 5, ठीक है ना। इज ये फंक्शन है, तो हमें दिखाना है सो दैट f is 1 1 एंड ऑन टू, आपको दिखाना है ये जो फंक्शन है 1 1 है और ऑन टू है। तो 1 1 दिखाने का क्या तरीका है, पहले ये देखिए। कभी भी अगर 1 1 दिखाना हो तो आपको प्रीवियस क्लास में भी हम बताए थे, फोर्थ जो वीडियो था, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट, वो सब अगर पढ़े हैं तो आपको याद होगा। उसको अगर आपने देखा है तो उससे याद होगा कि 1 1 दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट fx1 इज इक्वल टू fx2, तो fx1 इज इक्वल टू fx2 को हम लोग इक्वल दिखा देंगे, और आगे चल के हम ये दिखा देंगे x1 और x2 इक्वल है। fx1 और fx2 के इक्वल दिखाएं और आगे यह भी दिखा दे कि इस केस में x1 और x2 भी इक्वल है, देन वी कैन से दैट f इज 1 1। तो चलिए fx1 का वैल्यू डालते हैं। fx इज इक्वल टू गिवन 2x minus 5, देयरफॉर fx1 विल बी 2x1 minus 5। फिर fx2 का वैल्यू इसी पैटर्न पर आप निकाल लें, ये हो जाएगा 2x1 x2 minus 5। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 5 and 5 कैंसिल, यहाँ 5 है, 5 and 5 कैंसिल। इट सिंपलाइज 2x1 इज इक्वल टू 2x2, इट सिंपलाइज x1 इज इक्वल टू x2। तो आपने क्या देखा, अगर हम x1 के इमेज को और x2 के इमेज को, fx2 का मतलब इमेज ऑफ x2, fx1 का मतलब इमेज ऑफ x1, हमने ये सपोज किया कि इमेज ऑफ x1 एंड इमेज ऑफ x2 are equal, then lastly we have obtained a relation that x1 and x2 are also equal. That is, if image are equal, then x1 and x2 are not distinct number, that is different number. Okay, it means if x1 and x2 are equal, images are equal, then x1 and x2 are not different, that is equal number. इससे ये पता चलता है कि f is 1 1, therefore f is 1 1। अब उसके बाद 1 1 तो प्रूव हो गया, एक और बचा हुआ है ऑन टू प्रूव करना। तो ऑन टू प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो fx है उसको y सपोज करते हैं। अभी जैसे हम लोग रेंज निकाल रहे हैं, रेंज की तरह से ही इसको आगे बढ़ते हैं। लेट fx इज इक्वल टू y, fx इज इक्वल टू y, fx का वैल्यू आप यहाँ बैठा दो, ये हो गया 2x minus 5 इज इक्वल टू y। अब x का वैल्यू y के टर्म में निकाल लीजिए, तो therefore 2x is equal to y plus 5। It implies x is equal to y plus 5 by 2। पहला काम किए कि fx को y सपोज कर लिए, therefore 2x minus 5 is equal to y। फिर उसके बाद x का वैल्यू y के टर्म में निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन यही यूज करेंगे, लेकिन x के जगह पर x का जो न्यू वैल्यू निकला है y plus 5 by 2, उसको यहाँ पुट करेंगे। देखिए फिर fx का वैल्यू निकालते हैं, लेकिन कब, x के जगह पर ये जो न्यू वैल्यू आया है x का, इसको रख करके fx इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा x का वैल्यू आया है y प्लस 5 by 2। यहाँ से देखिए x का वैल्यू यहाँ हमने इसके जगह में पुट कर दिया। अब यहाँ रूल क्या करता है, fx इज इक्वल टू क्या है, ट्वाइस ऑफ x में से माइनस करेंगे 5। उसी तरीके से f10 अगर आता है f10, तो आप क्या लिखते हैं 2 into 10 minus 5, तो f y प्लस 5 by 2 है। इसका मतलब कि पैटर्न यही रहेगा 2 into y प्लस 5 by 2 और फिर माइनस 5, यानी x के जगह पर इसको पुट कर देना है, पैटर्न वही यूज करना है। 2 into यहाँ हो गया y प्लस 5 by 2 फिर माइनस 5, ठीक है। यहाँ x के जगह पर हमने जैसे fx है तो यहाँ 2x है, तो f इतना है, x के जगह पर 2 into ये जो नंबर है उसको रख दिए, फिर माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं
कि फिर एफ एक्स इक्वल टू वाई ही आता है कि नहीं। जो रिजल्ट है आप लोग सपोज किए एफ एक्स इक्वल टू वाई, अगर यही चीज फिर आ जाएगा रिलेशन, इट मीन्स एफ इज ऑन टू फंक्शन। तो देखिए 2 and 2 कैंसिल, देन y प्लस 5 माइनस 5 ये और ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू वाई। हमने क्या पाया कि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, इससे यह पता चला कि किसी भी नंबर का अगर हम डोमेन के x के जगह पर कोई भी नंबर लेकर के अगर उसका इमेज निकालते हैं तो y ही आता है। अब पहले हम y किसको माने हुए हैं, इमेज को सपोज किए हुए हैं। देयरफॉर वी कैन से दैट इट इज ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन हो गया। इस तरीके से 1 1 ऑन टू हम लोग दिखा सकते हैं। कुछ और टाइप के क्वेश्चंस बच गए जो नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे। जैसे कंपोजिशन फंक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं, इन्वर्टिबल फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, फिर अगर मीनिंग वन और इनटू फंक्शन प्रूव करने से रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। इन सभी क्वेश्चन में हम अगले क्लास में आपको बताएंगे और नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, इसके लिए निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक स्टूडेंट इससे लाभान्वित हो पाए, बेनिफिट उनको मिल पाए, इसलिए शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।